Hello students, I am Dr. Kiran Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, DAV PG College, Varanasi. Today I am going to discuss the visual system. This topic belongs for the students of BA 6th semester Psychology. Paper name is Neurophysiological Basis of Behavior. Here I am going to discuss how visual system work from eye to cortex. मतलब कैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम देखते कैसे हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या है, उसको हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो विजुअल सिस्टम क्या है? तो विजुअल सिस्टम में आप जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से जो है आईज, आँख आती है। तो मेनी स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन आई such as cornea and fovea process the light so it can be decoded by rods and cone in the retina. The retina, a thin layer of cell located on the inner surface of the back of eye, consists of photoreceptive cells which are responsible for the transduction of light into nerve impulse. However, light does not enter the retina unaltered. It must first pass through other layer that process it so that it can be interpreted by the retina. तो रेटिना पर कैसे इमेज बनती है और कैसे वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को जाती है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ये देखिए, जो बेसिक हमारी आँख का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया है इस पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बाहरी पोर्शन है इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, लेंस है, और ये पोर्शन हमारा है, ये रेटिना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व निकल रही है जो कि ब्रेन को जाती है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को ये ऑप्टिक नर्व जाती है। अब एक एक करके हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्निया की एटॉनमी क्या है। तो कॉर्निया, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई along with the crystalline lens refract light to focus the image on the retina. After passing through the cornea, the light passes through the aqueous humor which connect the cornea to the lens. This clear deleterious mass also provides the corneal epithelium which nutrients and help maintain the convex shape of the cornea. तो कॉर्निया जो हमारा सबसे बाहरी लेयर है जिससे आँख सबसे पहले प्रवेश करती है, लाइट जो है आँख में प्रवेश करती है, और उसका जो शेप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी में जो है एक तरह से बेंडिंग होती है, एक स्पेशल जो है उसके एक संरचना होती है, और इससे होता हुआ लाइट पास होकर जो है अंदर की तरफ आँख में घुसता है। दूसरा पोर्शन है इसमें आँख के अंदर, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस विच इज विजिबल एज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो हमें नीली या ब्लैक जो भी आँखें दिखती हैं, ब्लू या ब्लैक, नीली काली आँखें, तो वो इसी आइरिस की वजह से है। तो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज अ सर्कुलर मस्कुलर रिंग lying between the lens and the aqueous humor that regulate the amount of light entering in the eye. तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को जो है रेगुलेट करती है। लाइट passes through the center of the iris, the pupil which actively adjusts its size to maintain the constant level of light entering the eye. In condition of high ambient light, the iris contracts, reduce the size of the pupil. In condition of low light, iris relax and the pupil enlarge. ये जो
आइरिस है ये जो है एक तरह से रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे लाइट जो है जब कम ज़्यादा होती है तो उसको ये एडजस्ट करने में मदद करती है। तीसरा है लेंस। मेन फंक्शन ऑफ लेंस इज to focus light on the retina and fovea centralis. The lens is a transparent convex structure located behind the cornea. Cornea के ठीक पीछे जो है ये लेंस है. On the other side of the lens is vitreous humor which let light through without diffraction, maintain the shape of eye and suspend the delicate lens. The lens focus and refocus light and the eye rest on near and far object in the visual field. तो जो लेंस है वो फोकस और रिफोकस करके जो है ऑब्जेक्ट को विजुअल फील्ड पर ले आता है. The lens is operated by the muscle that stretch its flow or allow it to thicken, changing the focal length of light coming through it. Focus it sharply on the retina. तो रेटिना पर जो भी इमेज बनती है वो उसको लेंस एडजस्ट करने में मदद करता है. मतलब वो अपनी जो उसका कॉन्वेक्स नेचर है उसमें कम अधिक करके इसको जो है इस इमेज को फोकस करने में मदद करता है. अब इसमें जो है लेंस में अगर डिफेक्ट होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है देख सकते हैं. विद द एज कम द लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस. A form of far-sightedness called presbyopia results. तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में जब कमी आती है तो ये जो है प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम होती है. ये जो है एक प्रकार से फार साइटेडनेस इसको हम लोग कहते हैं. प्रेसबायोपिया अकर्स बिकॉज द इमेज फोकस बिहाइंड द रेटिना. जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है. So it is deficit similar to the different type of farsightedness, uh, hyperopia caused by the eyeball that is too short. For both defect, image in the distance are clear, but image near by the blur. तो पास की जो चीज़ें होती हैं वो ब्लर होती हैं, दूर के जो चीज़ें होती हैं ये इसमें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, चाहे प्रेसबायोपिया हो चाहे हाइपरोपिया हो. और मायोपिया जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस कहते हैं अकर्स व्हेन द आई बॉल इज इन लार्ज इलांगेटेड एंड द इमेज फोकस फॉर इन फ्रंट ऑफ रेटिना. तो ये जो है मेन चीज़ है, ये जो फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस की जो प्रॉब्लम है. फार साइटेडनेस में जो इमेज होती है वो पीछे बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो दूर की चीज़ तो ठीक दिखाई देती है लेकिन जो नज़दीक की चीज़ होती है वो ठीक से नहीं दिखती है. जबकि नियर साइटेडनेस में इमेज रेटिना के आगे बन जाती है जिसकी वजह से दूर की चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक होती हैं, नज़दीक की चीज़ ठीक होती है. थोड़ा सा इसको नाम को लेकर कन्फ्यूजन है. हिंदी में अगर आप देखेंगे तो फार्स को दूर दृष्टि बोलते हैं, दोस्त. कि फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस का मतलब फार का मतलब दूर की चीज़ ठीक दिखती है. तो इसमें जो है थोड़ा हिंदी में आपको प्रॉब्लम दिखेगी इसमें. अब जो इसमें अगला स्ट्रक्चर आएगा वो है रेटिना. तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर इन द रेटिना, रॉड एंड कोन, differ in many ways both anatomically and functionally. Rod, strongly photosensitive, are located in the outer edge of the retina. They detect dim light and are used primarily for the peripheral and nightmare vision. Cones, weakly photosensitive, are located near the center of retina. They respond to the bright light. Their primary role is in daytime or color vision. So rod provide the scotopic vision. They are very sensitive to the low level of light but cannot distinguish the colors.
whereas the cone provide the photopic vision. They react to the strong light. तो इस तरह से रेटिना की जो संरचना है जिसमें कोन्स और रॉड जो है पाए जाते हैं और वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों भिन्न होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है कोन्स और रॉड है। ये रॉड मतलब रॉड की तरह लंबा है और कोन्स ये जो है कोन जिसका जिस इसके इनका जो नाम है इनके शेप से ज़्यादा प्रभावित होता है। और आप इसको एक मतलब एक्रोनिम्स के रूप में देख सकते हैं कि रॉड और कोन। तो जो कोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, तो कोन को कलर से अगर आप अटैच कर देंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। कोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड रॉड जो है वो एक्रोमेटिक के लिए हो गया। या उस तरह से अगर हिंदी में देखना चाहें तो रॉड जो होते हैं वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कोन्स दिन में होते हैं। ऐसे भी आप करके उसको याद कर सकते हैं। अब इसमें एक और जो है महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग फोबिया कहते हैं। तो फोबिया इज द रीजन in the center back of the eye that is responsible for acute vision. The fovea has a high density of. When you bring your gaze to an object to examine it intentionally to bring light, the eye orients so that the object image fall on the fovea. However, when looking at the star in the night sky or other object in the dim light, the object can be better viewed by the peripheral vision because of the rods at the edge of the retina rather than cones at the center that operate better in low light. तो जो फोबिया है एक प्रकार से जो एक्यूट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ पर इस तरह का कोन्स रॉड नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एनाटॉमी और फंक्शन के आधार पर ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे आँख के, तो यहाँ पर आप देखिए कॉर्निया है, ये आप जो आउटर लेयर ये जो ब्लू जैसे देख रहे हैं थोड़ा हुआ, ये कॉर्निया इसको कहते हैं। और ये जो है ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई, इसको हम कहते हैं। ये दूसरा बीच में जो देख रहे हैं प्यूपिल चेंज द साइड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। तो आँख में जो भी लाइट प्रवेश करती है उसको ये प्यूपिल जो है कंट्रोल करता है। ये आइरिस पुतली जिसको कहते हैं, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। देखो ये आईलिड बाहरी पोर्शन है। उसी तरह ये लेंस देखिए, यहाँ पर इस पोर्शन में देख रहे हैं लेंस चेंजेस द शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो रेटिना है, रेटिना को लिखा है कि डिटेक्ट लाइट, ये लाइट को जो है डिटेक्ट करता है। और ये मसल फॉर मूविंग द आई बॉल, ठीक है, सिलियरी मसल्स होती हैं। और यहाँ पर आप देखिए ऑप्टिक नर्व कैरिड सिग्नल टू द ब्रेन फॉर द प्रोसेसिंग। तो यहाँ से इसके बाद जो है सिग्नल निकलकर ब्रेन को जाता है, उसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं। उसको अब फिर से जो है अब आगे की तरफ देखें कि ट्रांसडक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। यानी कि ट्रांसडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें फिजिकल एनर्जी लाइट की जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के रूप में, नर्व इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट होती है। तो द रॉड एंड कोन्स आर द साइट ऑफ ट्रांसडक्शन ऑफ लाइट इनटू द न्यूरो सिग्नल। मतलब रेटिना पर ही जो ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया होती है। बोथ रॉड एंड कोन्स कंटेन फोटोपिगमेंट which are a pigment that undergo a chemical change when they absorb light. Cones contain rhodopsin rod contain rhodopsin whereas cones contain iodopsin. तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो कोन और रॉड ये एक प्रकार से फोटो पिगमेंट इनके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और इन वर्टिब्रेट द मेन फोटो पिगमेंट हैज टू मेन पार्ट, ऑप्सिन which is the membrane protein and रेटिनन या उसको रेटिनल भी बोलते हैं। रेटिनल क्या है कि द मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब द लाइट।
तो इस तरह से जो यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर जो है यानी कि कून और रॉड्स जो हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर हैं, दो संरचनाएं हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर तो कून्स रॉड दोनों के बराबर होती है, जिसमें न्यूक्लियस और बाकी चीजें होती है, लेकिन आउटर लेयर में ये जो है आपका जो है ऑप्सिन पाया जाता है। तो कून्स में जो ऑप्सिन पाया जाता है उसको हम लोग जो है आइडोप्सिन कहते हैं, और रॉड में जो पाया जाता है उसको रोडोप्सिन। अब आप रॉड को रोडोप्सिन आर आर से जो है सिमुलेट करके याद कर सकते हैं कि रॉड रोडोप्सिन एंड कोन को आइडोप्सिन। ऑप्सिन के ये दो पोर्शन है, आइडोप्सिन एंड रोडोप्सिन। अब देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो व्हेन लाइट हिट्स द फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर मतलब ये जो कोन्स एंड रॉड, it caused change, shape change in the retina, altering its structure from curve from form of the molecule to its linear isomer। तो जो ये जो है ये लीनियर आइसोमर होता है, इसका जो अभी हमने बताया कि जो रेटिनल होता है उसके जब लाइट इस पर पड़ती है तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि अल्टरिंग इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कर्व फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल टू इट्स लीनियर आइसोमर। ठीक है, तो कर्व से इसको लीनियर में जो है चेंज कर देता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है आइसोमेराइजेशन कहते हैं। मतलब जो रेटिनल का जो कर्वी नेचर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग आइसोमराइजेशन कहते हैं। So this isomerization of retinal activates the rhodopsin, starting a flow of event that end with the closing of NaCl, Na plus channel in the membrane of the photoreceptor। तो जैसे ही इसमें चेंज होता है, यानी कि आइसोमराइजेशन जैसे होता है, यानी कि जो रेटिनल जो स्ट्रक्चर है उसमें जब चेंज होता है तो उसके बाद जो जो दूसरा इसमें परिवर्तन होता है इसको में हम लोग ऑप्सिन कहते हैं। तो ऑप्सिन में चेंज होता है, यानी कि ऑप्सिन को एक प्रकार से स्टिमुलेट करता है। ऑप्सिन अभी मैंने आपको बताया कि रॉड और पुल्स में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जो है रोडोप्सिन है। अब ये रोडोप्सिन जो है एक्टिवेट होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है एक पूरी रेंज ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये तब होती है बंद जब सोडियम प्लस चैनल इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रिसेप्टर्स जो है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कैसे सेल मेम्ब्रेन जो है पोलराइज फॉर्म से डीपोलराइज, हाइपर पोलराइज और रीपोलराइज होती है। तो वो सारी प्रक्रियाएं भी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, thus unlike most other sensory neuron which become depolarized by exposure to the stimulus, visual receptors become hyperpolarized and are driven away from the threshold। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से ये रोडोप्सिन का एक्टिवेशन जो है वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि लाइट हिट्स टू द रॉड सेल एंड आइसोमराइज रेटिना, rhodopsin in converts to the meta-rhodopsin, second meta-rhodopsin second activates transducing, and transducing activates uh, phosphodiesterase and phosphodiesterase hydrolyze cyclic जीएमपी। जीएमपी मतलब ये जो है गुनो साइन मोनोफॉस्फेट है, एंड साइक्लिक जीएमपी इज इन स्केयर, सो Na plus channel closed and the membrane is hyperpolarized and electrical impulse is sent to the brain। तो इस प्रकार से जो है ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया होती है। ट्रांसडक्शन मतलब यहाँ पर जो लाइट है वो फोटॉन से, यानी कि जो इसका जो फिजिकल नेचर है वो कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में, नर्व इम्पल्स के रूप में ब्रेन को भेजी जाती है।
तो उसी को जो है आपको दिखाया। अभी ट्राइक्रोमेटिक कोडिंग क्या है, तो इससे आपको मैंने पहले बताया कि कोल्ड कोन्स जो होते हैं कलर विजन के लिए होते हैं, लेकिन कोन्स में जो ऑप्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए ले कि लाइक रॉड्स विच कंटेन सिंगल फोटो पिगमेंट, रॉड में सिंगल फोटो पिगमेंट होता है। देयर आर थ्री लेयर ऑफ कोन्स दैट डिफर इन द फोटो पिगमेंट कॉल्ड आइडोप्सी दे कंटेन। Each of the photo pigment has a different sensitivity to the light of the different wavelength, and for this reason they are referred as to blue, green and red। और इसको मोर एप्रोप्रिएटली कहें शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है लाइट वो ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो हमारा आइडोप्सिन है। और दूसरा मीडियम है वो ग्रीन लाइट के लिए होता है। लॉन्ग जो होता है जो वेवलेंथ वाली वो रेड के लिए होता है। तो टर्म्स आर मोर और लेस डिस्क्राइब देयर स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी। विथ ओनली वन टाइप ऑफ कोन कलर विजन वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो एक केवल कोन कलर प्रकार के कोन से कलर विजन संभव नहीं है। ठीक है, तो टू वो कोन या इसको हम लोग डाइक्रोमेटिक सिस्टम, इसकी भी अपने लिमिटेशंस हैं। इसीलिए जो है प्राइमेट्स में, यानी कि हम लोगों में या जो जानवर हैं ज़्यादातर प्राइमेट जो स्तनधारी, दे यूज अ थ्री कोन ट्राइक्रोमेटिक सिस्टम रिजल्टिंग इन फुल कलर विजन। तो फुल कलर विजन के लिए ये ट्राइक्रोमेटिक सिस्टम की आवश्यकता है। कौन कौन से जो है वेवलेंथ पर किस किस तरह के लाइट्स वर्क करती हैं उसके लिए ये दिया हुआ है। रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। तो ये 425 से लेकर 700 ये जो वेवलेंथ है जो ज़्यादातर कलर विजन का जो है स्पेक्ट्रम है जो हम लोग परसीव कर पाते हैं। अब रेटिनल प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो विजुअल सिग्नल लीव द कोन्स एंड रॉड, ट्रेवल टू द बाइपोलर सेल एंड देन टू द गैंग्लियन। तो यहाँ पर जो विजुअल सिग्नल है वो कोन्स रॉड से निकलता हुआ ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल टू द बाइपोलर सेल मतलब ये कोन्स एंड रॉड एक तरह से जो है रेटिनल सेल है। ठीक है, उसके बाद ये बाइपोलर सेल को जा रहा है और देन गैंग्लियन सेल को। ठीक है, a large degree of processing of visual information occurs in the retina itself before visual information is sent to the brain. The photoreceptor in the retina continuously undergo tonic activity, that is they are always slightly active even when no not stimulated by the light। तो यहाँ पर एक्टिवेशन जो है फोटो रिसेप्टर्स में चलता रहता है, लाइट हो चाहे नहीं हो। ठीक है, अब उसी को देखिए कैसे होता है रेटिनल प्रोसेसिंग। इन न्यूरॉन दैट एग्जिबिट टॉनिक एक्टिविटी द एब्सेंस ऑफ स्टिमुली मेंटेन अ फायरिंग रेट at the equilibrium, while some stimuli increase firing rate from the baseline, other stimuli decrease the firing rate। In the absence of light, the bipolar neuron that connect rod and cones to the ganglia, जो है गैंग्लियन सेल को कनेक्ट करने वाला जो कोन्स रॉड को सेल गैंग्लियन सेल से कनेक्ट करने वाला जो बाइपोलर है, ये जो है एक प्रकार से इस तरह की लाइट्स को से ऑपरेट होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द बाइपोलर न्यूरॉन दैट कनेक्ट रॉड एंड कोन टू द गैंग्लिया सेल आर कंटिन्यूसली एंड एक्टिवली इनहिबिट बाय द रॉड एंड कोन। ठीक है, मतलब लाइट नहीं भी है तभी भी जो फायरिंग होती है इटसेल्फ, तो कुछ इनहिबिट करने वाली, कुछ जो है एक्साइट करने वाली, उनसे ये होता रहता है इंफ्लुएंस। Exposure of retina to light hyperpolarize the rods and cones, removing the inhibition of their bipolar cell, the now active bipolar cell in turn stimulate the ganglion cell which send action potential along their axon। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप से ये बाइपोलर सेल से गैंग्लियन में एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। Thus, the visual system relies on the change in the retinal activity rather than the absence or presence of the activity to encode visual signal from the for the brain। Sometimes horizontal cell carries signal from one rod or cone
to other photoreceptors and to several bipolar cells. When a rod or cone stimulates the horizontal cell inhibit more distal photoreceptors and bipolar cell, creating lateral inhibition. This inhibition sharpens edge and enhance contrast in the image by making region receiving light appear lighter and dark surrounded appear darker. Amacrine cell can distribute information from one bipolar to the many ganglion. तो बाइपोलर सेल से गैंग्लियन सेल को जो है सूचनाएं जाती रहती हैं और उसमें जो है इस तरह से कुछ हॉरिजेंटल सेल होती हैं जो कून्स रॉड से जो सूचनाओं को रिसीव करके बाइपोलर सेल को भेजती हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है ये हॉरिजेंटल सेल में इस तरह के इनहिबिशन होते रहते हैं, लेटरल इनहिबिशन जिसको मैंने बताया इवन रॉड और कोन स्टिमुलेट हॉरिजेंटल सेल इनहिबिट मोर डिस्टल फोटोरिसेप्टर बाइपोलर सेल, तो इनहिबिशन भी होता रहता है। ये सब सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर रेटिना पे होती है। अब हायर प्रोसेसिंग कैसे होती है उसको हम देखें तो विजुअल सिग्नल आर प्रोसेस्ड इन द ब्रेन थ्रू सेवरल डिफरेंट पाथवे। द माइलिनेटेड एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन सेल मेकअप द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व कैसे बन रही है तो गैंग्लियन जो है माइलिनेटेड एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल। अगर गैंग्लियन सेल को सूचना कहाँ से मिल रही बाइपोलर सेल से, बाइपोलर को कहाँ से मिल रही है तो जो है सेंसरी सेल या उसको आप कॉन्सन रॉड कहते हैं। तो सम एक्सॉन constitute the magnocellular big cell pathway which carry information about form, movement, depth and difference in brightness। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग पाथ हैं। ठीक है, तो सम एक्सॉन कंस्टिट्यूट द मैग्नोसेलुलर पाथवे। ये मैग्नोसेलुलर इसको हम लोग बिग सेल भी कहते हैं और ये क्या करती हैं कि ये मैग्नोसेलुलर या बिग सेल जो है दे आर कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्म, मूवमेंट यानी आकार, जो उसके मूवमेंट को, डेप्थ को और ब्राइटनेस के डिफरेंस की सूचनाओं को ये मैग्नोसेलुलर पाथवे कैरी करता है। अब उसी तरह से अदर एक्सॉन कंस्टिट्यूट द पर्वोसेलुलर पाथवे। ये पर्वोसेलुलर इसको हम लोग स्मॉल सेल पाथवे भी कहते हैं विच कैरी इंफॉर्मेशन ऑन कलर एंड फाइन डिटेल। ठीक है, तो ये जो है कलर और फाइन डिटेल की सूचना ये पर्वोसेलुलर पाथवे कैरी करता है। सम विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट डायरेक्टली बैक into the brain while other information cross to opposite side of the brain। अब जैसे कुछ सेम साइड को चलती है, कुछ अपोजिट साइड को जाती है, तो जो वहाँ क्रॉसिंग होती है उसको हम लोग ऑप्टिक कियाज्म कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है और उसकी वजह से ही जो है हम कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं, यानी कि लेफ्ट विजुअल फील्ड की सूचना लेफ्ट ब्रेन को या लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जानने के साथ साथ जो है राइट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स को भी जाती है, यानी कि राइट ऑसिपिटल लोब को भी जाती है। ये देखिए यहाँ पर कैसे सूचनाएं जा रही हैं, क्रॉस हो रही। तो ये देखिए राइट विजुअल फील्ड है, ये लेफ्ट विजुअल फील्ड है, ये देखिए ऑप्टिकल लेंस है या रेटिना है। अब यहाँ से जो है ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है। अब देखिए ये यहाँ से निकल कर ये इधर से भी जा रही है, यानी कि ये दो एरिया है, ये रेड और ग्रीन। तो ये देखिए ग्रीन यहाँ से होते हुए इधर जा रहा है और रेड वाला जो है ये पोर्शन होते हुए यहाँ आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे रेड वाला यहाँ से होते हुए क्रॉस होकर इधर आ रहा है और ग्रीन वाला जो है यहाँ से होते हुए इधर, यानी कि क्रॉस होता है। और जिस बिंदु पर क्रॉस होता है उसको हम लोग ऑप्टिक कियाज्म कहते हैं। ऑप्टिक कियाज्म वो पॉइंट है जहाँ पर लेफ्ट और राइट विजुअल फील्ड की जो सूचनाएं, लेफ्ट राइट ईयर की जो सूचनाएं हैं वो क्रॉस होके जो है कंट्रालेटरल हेमिस्फीयर को जाती हैं। इप्सिलेटरल भी है, कंट्रालेटरल मतलब सेम साइड भी जा रही है, अपोजिट साइड भी जा रही है। Once the brain
Visual information is processed in several places. Its root reflects the complexity and importance of visual information to human and other animals. One root takes the signal to the thalamus, which serve as the routing station for all incoming sensory impulses except smell. तो हम लोग जानते हैं कि थैलमस रिले सेंटर है जिसमें स्मेल को छोड़कर ज़्यादातर सेंसरी सूचनाएं वहाँ तक से जो है रिले होती हैं, पहुँचती हैं वहाँ पर. इन द थैलमस द मैग्नोसेलुलर एंड पर्वोसेलुलर distinction remain intact. There are different layers of the thalamus detached to each other. ये सॉरी डेडिकेटेड टू ईच अदर. तो जो पर्वोसेलुलर, जो मैं भी ने बताया कि मैग्नोसेलुलर जो फार्म वगैरह के लिए होती है, पर्वोसेलुलर जो कलर वगैरह के लिए होती है, तो वो यहाँ पर भी थैलमस के अलग अलग लेयर्स में ये चीज़ें होती हैं. नीचे उसी के पैरेलल चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. अब कॉर्टिकल प्रोसेसिंग का देखें तो व्हेन विजुअल सिग्नल लीव द थैलमस, थैलमस का जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है वो इसको प्रोसेस करता है. मेडियल जेनिकुलेट ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए होता है. दे ट्रेवल टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. ऑसिपिटल लोब में ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है एट द नियर ऑफ द ब्रेन. फ्रॉम द विजुअल कॉर्टेक्स द विजुअल सिग्नल ट्रेवल इन टू डायरेक्शन. अब जैसे विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है सूचना, तो वहां से ये दो डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. One stream that projects to the parietal lobe in the side of the brain carry magnocellular information. मतलब कोई चीज कहाँ है, ठीक है, तो उसका लोकेशन के लिए ये मैग्नोसेलुलर है और ये जो है वहां से सूचना यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स से हमारा पैराइटल लोब को जाती है. ठीक है, तो अगर हम लोब के टर्म में देखें तो विजुअल कॉर्टेक्स हमारा ऑसिपिटल लोब में होता है और ऑसिपिटल से सूचना पैराइटल को. पैराइटल जो है ये जो ऑसिपिटल पीछे है, पैराइटल ये हमारा ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं. और सेकंड स्ट्रीम प्रोजेक्ट द टेम्पोरल लोब एंड कैरी बोथ मैग्नोसेलुलर एंड पर्वोसेलुलर. तो यहाँ पर ये जो दोनों पार्ट हमारे हैं ये टेम्पोरल लोब के, इन दोनों को सूचनाएं भेजता है. और इसमें व्हाट एंड वेयर मतलब कहाँ है और क्या है, मतलब कोई चीज़ देख रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है और वो चीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें की सूचना यहाँ पर प्रोजेक्ट होती है. ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट विजुअल रूट इज द पाथवे फ्रॉम द रेटिना टू द सुपीरियर कॉलिकुली इन द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में मैंने बताया था कि जो है टेक्टम और टेगमेंटम होता है, तो वहाँ पर जो है सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुली होती है. तो सुपीरियर कॉलिकुली जो होती है विजुअल के लिए होती है, इंफीरियर कॉलिकुली जो है वो ऑडिटरी के लिए. अब ये क्यों यहाँ भेज रहा है कि वेयर आई मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सुपीरियर कॉलिकुली के साथ साथ इंफीरियर कॉलिकुली भी मिड ब्रेन में होता है, तो ये सूचना वहाँ पर भेजी जाती है कि जो है आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करे और जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन उसके साथ वो मतलब कोई चीज़ कोई किसी को आप देख रहे हैं बोल रहा है तो उसके फेस के साथ साथ आवाज़ भी जाती है, तो वो फिगर के साथ साथ उस साउंड को भी वहाँ कोऑर्डिनेट करना होता है जैसे लिप रीडिंग कर रहा है कोई. ठीक है, एंड फाइनली देयर इज अ पाथवे फ्रॉम द रेटिना टू द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस. इसको हम लोग एससीएन कहते हैं ऑफ द हाइपोथैलेमस. द एससीएन इज a cluster of cell that is considered to be the body internal clock which control our circadian cycle. जिसको हम circadian cycle मतलब डे नाइट का है जो है. The SCN send information to the pineal gland which is important in the sleep wake pattern and the annual cycle. तो ये जो है एक अलग रूट दूसरा रूट है इसमें सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को सूचना जाती है रेटिना से और वो जो है वो एससीएन जो है पिनियन ग्लैंड को सूचना भेजता है और हमारी जो स्लीप वेकिंग पैटर्न है उसको रेगुलेट करता है. उसी को जो भी हमने भी बताया उसको आप पिक्चोरियल फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैसे सूचनाएं डिफरेंट लेयर से जाती हैं. यहाँ देखिए स्क्वायर ऑफ आई, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, क्रॉस फाइबर एंड अनक्रॉस फाइबर, ऑप्टिक कियाज्मा जहाँ क्रॉस होता है, ऑप्टिक ट्रैक एंड कमीशन कमीशर ऑफ
वुडन, ये पल्विनर न्यूक्लियस है, ये लेटरल जेल न्यूक्लियर बॉडी है, सुपीरियर कॉलिकुली है, मेडियल जेल न्यूक्लियर बॉडी है, न्यूक्लियस ऑफ ऑकुलोमोटर नर्व जो आँख के गति को यानी कि आई बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और यह जो है न्यूक्लियस ऑफ ट्रॉक्लियर नर्व एंड न्यूक्लियस ऑफ एब्ड्यूसेंट नर्व, ये सब नर्व हैं जो आँख को रेगुलेट करती हैं, और वहाँ से इन सब से होते हुए सूचना जो है कॉर्टेक्स ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, तो यहाँ पर ऐसे ये सूचना आपकी पहुँचती है। और उसी को एक सीक्वेंस में जो भी मैंने बताया वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर रेटिना पर पहुँचती है सूचना, जिसमें कून्स रॉड होते हैं, और वहाँ से बाइपोलर न्यूरॉन को पहुँचता है, बाइपोलर से गैंग्लियन सेल के एक्सॉन जिसको जो कि ऑप्टिक नर्व का निर्माण करता है। ऑप्टिक नर्व जो है ऑप्टिक की आजनों पर क्रॉस होती है, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, फिर ऑप्टिक रेडिएशन, फिर प्राइमरी विजुअल एरिया ऑफ द ऑक्सीपिटल। इस तरह से सूचना कैसे फ्रॉम आई टू कॉर्टेक्स जाती है, उसका न्यूरल बेसिस क्या है और किस तरह से हमारा विजन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस आपको इस लेक्चर में बताई। ऑडिटरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू।